Hello and namaskar to all the viewers. I, Ms. Rupali, welcomes you all on my YouTube channel, that is Bhumi's Physics Tutorial. So we have started with Unit 1, that is Units and Measurement, and today we are going to discuss another subtopic from the Unit 1, that is errors. So let's begin with it. So first we'll understand the meaning of error. So in the previous videos we have seen what are the physical quantities and how these physical quantities are measured, right? So whenever we measure the physical quantities, there are certain errors which can occur while measuring. And that occurrence of uncertainty while measuring any physical quantity, that is known as an error. The result of every measurement by a measuring instrument contains some uncertainty, and this uncertainty is called as error. कि मान लो कि आपको मैंने एक आयरन का बॉल दिया है और आपको मैंने बोला कि मेजर द मास ऑफ द आयरन बॉल while using the weighing machine, and the real mass of the ball is 5 kg, and whatever readings you got as 4.95 kg or 4.69 kg, these are the readings you got, which is not exactly matching with the real value of the mass of the iron ball. Now this is maybe due to the fault in the instrument. Yes, it may be due to your mistakes while measuring the mass of the iron ball. So these uncertainties are there whenever you are taking the readings of any quantity, and that is leads to the error. So error क्या है ये समझ में आ गया? तो result of every measurement by a measuring instrument contains some uncertainty, and that uncertainty is known as an error. Now whenever you are taking measurement, both the accuracy and the precision terms are involved in the measurement. Now accuracy क्या है और precision क्या है, ये पहले हम समझ में लेते हैं. तो accuracy जो है, that is a measure how close the measured value is to the true value. तो हमने कंसिडर किया कि आयरन बॉल का एक्चुअल मास जो है वो 5 kg है, बट द रीडिंग्स यू गॉट दैट इज 4.95 kg, राइट? सो कितने क्लोज है जो भी आपने मेजर किया टू इट्स ट्रू वैल्यू, दैट इज योर एक्यूरेसी, राइट? वाइल प्रिसिजन क्या बोलता है? तो इट टेल्स अस टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड. मतलब आपने दो रीडिंग्स लिए, राइट? बट ये दो रीडिंग्स भी आप आपस में कितने रिलेटेड है वो बताता है प्रिसिजन. ये समझने के लिए और एक एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि बास्केटबॉल. आपने देखा होगा कि बास्केटबॉल खेलते वक्त एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन, यस, बोथ प्लेज अ रोल ओवर देयर. मान लो कि फुटबॉल प्लेयर ने क्या किया, ही थ्रोज अ बॉल. नाउ देयर आर टू चांसेस, आइदर द बॉल विल लैंड इनटू द बास्केट और क्लोज टू द बास्केट. बराबर है? तो जब प्लेयर ने बॉल को शूट किया, ये दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि आइदर वो बास्केट में जा सकता है और आइदर क्लोज टू द बास्केट वो जा सकता है. तो ये हो गया एक्यूरेसी, वो कितने क्लोज गया. और प्रिसिजन मतलब क्या होगा? अगर वो प्रिसिजन से बॉल थ्रो करता है तो दैट शुड फॉल इन टू द बास्केट.
तो ये एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन बोथ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेजरमेंट. सो गॉट द पॉइंट. एरर क्या है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व्ड है इन द मेजरमेंट. ओके, सो as a technologist, whenever you are taking measurement of any quantity, yes, you should have accuracy and precision while measurement. Now there are types of errors. There are 3 types of error. So let's start with the first error, that is the instrumental error. नाउ ये वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर है, मतलब ये एरर वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने के वजह से हो रहा है. देयर आर सम फॉल्ट्स इन द इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयरफॉर ये जो एरर है वो ऑकर हो रहा है. ओके, सो द एरर विच अराइजेस ड्यू टू इम्परफेक्ट डिज़ाइन और कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसकी वजह से जो भी एरर होने वाला है दैट विल बी द इंस्ट्रूमेंटल एरर. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते कि वर्नियर कैलिपर. तो ये जो वर्नियर कैलिपर है इट इज़ यूज टू मेजर द थिकनेस और द आउटर एंड द इनर डायमेंशंस. ओके, सो ये वर्नियर कैलिपर ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज होता है एंड इट हैज़ अ ज़ीरो मार्क on it. There are 2 scales होते हैं उसमें, वर्नियर स्केल होता है और मेन स्केल होता है. तो it may happen that sometimes both zeros of the vernier scale and the main scale they do not match with each other. थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, वो मैच नहीं हो रहा है एक दूसरे के साथ, and that leads to the instrumental error. Okay, so in vernier caliper, zero mark may not coincide with the zero mark of the main scale, and this error can be minimized by selecting the better instrument. So whenever you will take any instrument for the measurement, you should first have a look whether that instrument is accurate or not, or whether that is taking readings with precision or not. ऐसा हो सकता है कि पानी का हमें बॉइलिंग पॉइंट पता है दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, एंड वी टेक वन थर्मामीटर एंड दैट इज शोइंग और द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द टेम्परेचर एज 104 डिग्री सेल्सियस. तो 104 डिग्री सेल्सियस इज नॉट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर. दैट मीन्स देयर इज अ फॉल्ट इन द थर्मामीटर. दैट इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर. ओके, सो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इसकी वजह से वो 4 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का. ओके, सो सच टाइप ऑफ एरर्स आर नोन एज द इंस्ट्रूमेंटल एरर्स. Easy, simple. So this is one type of error, that is instrumental error. Now let's move to the next type of error, that is systematic errors. Now ये systematic errors कैसे lead होते हैं, कैसे occur होते हैं, let's have a look at it. So these errors arise due to imperfection in experiment technique or procedure. आप experiment कर रहे हो, you don't have that much of perfection while doing the experiment, so that can lead to the error. ओके, और अगर आप प्रोसीजर ही फॉलो नहीं कर रहे हो, सो दैट कैन ऑल्सो लीड टू द एरर एंड दैट इज नोन एज द सिस्टमैटिक एरर. फॉर एग्जाम्पल है पॉइंट ऑफ द वोल्ट मीटर. ओके, सो वोल्ट मीटर में क्या होते हैं, रेंजेस होते हैं, उसमें रीडिंग्स होते हैं, उसमें स्केल होता है, बराबर है. सो इफ़ ऐसा हो सकता है कि पॉइंटर ऑफ द वोल्ट मीटर इट डज नॉट कोइंसाइड विथ एनी मार्क. जो पॉइंटर है वो कौन से भी स्केल जो है वोल्ट मीटर पे उसके साथ मैच नहीं हो रहा है, तो दैट लीड्स टू द सिस्टमैटिक एरर. ओके, तो सच टाइप ऑफ एरर्स आर नोन एज
the systematic errors which occur due to imperfection in the experimental technique or the procedure. Easy and very simple. Okay. Next type of error is the random error. तो word ही ये बोल रहा है इसका meaning कि random error. So obviously these errors are occurring randomly. आपको भी पता नहीं चलता है कि ये error कैसे occur हो रहे हैं, बराबर है. So the error which occur due to unpredictability. और ये अनप्रेडिक्टेबल है. ये कैसे भी हो सकता है कि मान लो आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, किसी का धक्का लग गया तो एक्सपेरिमेंट हिल गया, आपका रीडिंग गलत हो गया तो एरर आ गया. समझ में आ गया. सो ऐसे टाइप के एरर्स जो हमें पता ही नहीं चलता है वो कैसे भी हो सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं रैंडम एरर. सो चेंज इन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हो सकता है, बराबर है. लाइक चेंज इन द टेम्परेचर और वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो वॉट एवर रीडिंग्स यू आर टेकिंग दे आर नॉट मैचिंग विद द ट्रू वैल्यू. सो ऐसे टाइप के एरर को हम बोलेंगे रैंडम एरर. और चेंज इन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, तो उसके वजह से भी एरर्स जो है वो ऑकर होने वाले हैं, जिसको हम बोलेंगे रैंडम एरर. सो वी हैव सीन द मीनिंग ऑफ एरर and 3 classification of the error, that is random error, then systematic error and the instrumental error.